Rex, how is in Sri Lanka? Is it complete lockdown or Yes. Yeah, I think what's yeah? happening is we've had about six districts. This country's been locked down, but for several districts they lifted the curfew this morning, and but not in Colombo. Colombo, it's pretty much on Colombo and Kandy. Okay, so I think it's everywhere in the world, and there is no sporting week. Very long, I think it's not going to, you know, uh, start in very near future. So how all the sports persons and cricketers and all and what's their normal routine like? It's just everyone basically stuck inside watching old movies and trying to play games and things like that. Unfortunately, this time of the year, it's like the singlest time in New Year as well. So, people can hardly do anything. Everyone is stuck inside. And how many cases have been reported till now in Sri Lanka? We are, Yeah. in So, India, yeah, we have as of now we have more than 11,000 cases and around 400 deaths. yeah, we've got about 250 cases and seven deaths, if I'm not mistaken. Yeah. Okay, so you know nowadays I work in a print media. You also work in print media, I guess. So are your all newspapers getting printed and No, delivered? no, Because no. So here basically, we what are we've done getting, is we've it's very restricted difficult ourselves to for the us. online version, and everyone is sort of doing online things, and yeah. So go back to old games, and go back to old stories, speak to old, former players, and write some stuff. Yeah. Hmm. And Said bhai, are you getting us? Yes, yes, I can. I can hear you. Yeah, yeah. So, what about Pakistan? We are, we are aware about, a little bit more about Pakistan than Sri Lanka. So, I guess you also have numbers of cases in your country, and same here as in India. Well, we are hearing a lot of alarming things. People are striking because the lockdown has not been followed properly. There are close to 150 deaths now, over 7,000 cases, and are not obeying the lockdown. There is one famous joke going around that five kids, uh, wife and husband were on a motorbike, and when the police stopped them, they said, "Where are you going? This is complete lockdown." He said, the husband said, I want to show them what is lockdown." Mhm. People are not following it properly. That's why cases are increasing. And now the holy month of Ramzan is coming. All the Molvis, they are not listening, although there is a complete shutdown of mosque and the holy Kaaba in India. But here the Molvis say that come and offer praise in masjid. They are not obeying at all. Uh, and you know, sports is not happening anywhere in the world, and it's very tough for all of us in near future. And people are missing sports, but we cannot help. All the cricketers, all the players are inside. We are inside, working from home. Our papers being published, but it is not being circulated and going to the readers properly because they are also getting scared. Uh, there were some rumors earlier on that newspaper spread coronavirus. What's there in your country? You're asking me? You're No, asking I'm Shai? asking Shahid.
No, I couldn't hear your question. No, actually, I asked this to Rex earlier, and you know, newspapers are getting published, but it is not. We are not able to circulate it. It's not going everywhere. People are, scared of, reading newspaper. They think that it will spread coronavirus. What's up in your country? Yes, I think the situation is the same here in Pakistan as well. Although people are not following the lockdown properly, so we are getting newspapers, but the coming times are very tough. The economic meltdown, uh, the, a lot of people will lose their jobs. That some organizations will have pay cuts. So tough times are ahead, and cricket-wise also, Pakistan will also suffer because their TV rights are up for sale in June this year, and they are not getting proper clients. They always have clients from India, but this time I don't think they will get good money for their TV rights. And welcome, Bhatti Saab. Majid Bhatti Saab also joined भाई us just now. भाई नमस्कार संजीव मामा कैसे हैं? How are रेक्स you, अरे Majid भाई bhai? कैसे हो? रेक्स हाउ आर यू गुड 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 तो अभी I was discussing साहिद भाई कैसा चल रहा है वहाँ पे. So he was mentioning that people are not following lockdown properly, and numbers of cases is being increase every day. तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? First of all, about the Pakistan, how is faring, and you know how is the situation over there? Same as India, we are also having 11,000 cases as of now, or abhi tak we have around 400 deaths. संजीव हमारे यहाँ तो बिल्कुल शायद सही कह रहे हैं कि यही सिचुएशन है तो वी हैव मोर देन 6,000 केसेस एंड मेरा ख्याल कोई 127 या 128 पीपल जो है वो उनकी डेथ हुई है तो बात वही है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है लेकिन रेशो वाइज जो है वो पाकिस्तान का रेशो बहुत ज़्यादा है लेकिन बिल्कुल यही है कि लोग इसको बहुत इजी ले रहे हैं फॉलो नहीं कर रहे हैं और कोई 1 महीना हो गया हम लोग भी घर में बैठे हुए हैं बस अभी समझ लें कि हमारा घर ही हमारा ऑफिस है यहीं से सारा ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन है कि मिस कर रहे हैं पीएसएल चल रही थी ये सब कुछ हुआ क्रिकेट को मिस कर रहे हैं क्रिकेटर्स को मिस कर रहे हैं आप लोगों को मिस कर रहे हैं अपने इंडियन फ्रेंड्स को क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ आप लोगों की तरफ से अपडेट्स आती रहती हैं वो पॉलिटिकल सिनेरियो डिफरेंट है लेकिन मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि भाई हम तो जब इंडिया जाते हैं हम 2016 में मैं और शायद कलकत्ता गए दिल्ली गए चंडीगढ़ गए तो हमारा तो वही फैमिली एटमॉस्फेयर रहता है अभी पिछले दिनों रशीद शकूर ने एक फोटो भी ट्विटर पे पोस्ट की थी कुलदीप भाई के घर की उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया था दिल्ली में तो ये मतलब बाउंड्रीज जो हैं ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं मेरे ख्याल में क्रिकेट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं है और एज ए ह्यूमन बीइंग इंडिया में जो कुछ होता है यहाँ लोग फॉलो कर रहे होते हैं इंडिया वाले पाकिस्तान को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम तो यही होप करते हैं कि भाई जल्दी ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए एटलीस्ट क्रिकेटिंग टाइम रिवाइव हो जाए फिर हम दोबारा एक दूसरे के साथ मिल सके क्योंकि लास्ट टाइम हमारी आपकी लॉर्ड्स में फाइनल पे मुलाकात हुई और मुझे आज भी याद है वो सचिन के साथ हम तस्वीर बनवाना चाहते थे और आपने जब सचिन से इंट्रोडक्शन करवाया इतना बड़ा प्लेयर और इतना हम्बल बैकग्राउंड के साथ वो मिल रहा था और इतना डाउन टू अर्थ ह्यूमन बीइंग मतलब बहुत कम लोग इस तरह इतने बड़े क्रिकेटर्स इस तरह के लोग होते हैं ये सारी चीजें मिस हो रही हैं लेकिन बहरहाल एक क्रिकेट में मेरा ख्याल हम बात कर रहे हैं लेकिन पूरा दुनिया का इस वक्त सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया है हम नई एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है वर्ल्ड वाइड इस कोरोना वायरस की वजह से Luckily, I'd like to explain Rex because
you know, he knows a little bit of Hindi and Urdu. He would not know what just now Bhatti Saab, told to all of us. He was mentioning that we all are missing, and he also mentioned about his meeting with Sachin Tendulkar during the finals at Lords, and we also met there last time. So we were eagerly waiting for some other tournaments to start, but unfortunately we are stuck at home. He also mentioned that how humble संजीव Sachin was and how he, संजीव ये पिक्चर नजर आ रही है आपको? he agreed to have a picture and group picture of all the Pakistani journalists, and I think he's showing that picture with Sachin that is hanging on the wall inside his living room. Sachin. So have you also met Sachin, any story? First with Sachin, he got anything like you spoke and you took interview of Sachin. Any incident about Sachin Rex? Sorry, Sanjeev, I'm not able to follow your question. No, are you getting? I was asking about Sachin. Have you ever, taken any interview, any interaction with Sachin, any story with Sachin? Was he like You mean Majid me? Bhai was, just mentioning that? Yeah. So I've covered him extensively. He's come here on several tours. I haven't interacted with him one-on-one, but I've attended plenty of press conferences and things like that. Obviously, the best player of our generation, and watched a lot of match-winning knocks by him, and it's been absolute treat to watch. Rex, I can show you another very memorable picture of Colombo. Oh, President Rajapaksa. Rajapaksa, one and only LKP Sahi. Which year was this? Before night before World T20 final, I think in Colombo. Yeah. These are all. I'll also like to tell recently. These are golden memories. Few days back, Majid Bhai, around 10 days back, I got a message from Sachin, and he was, he asked about how are you doing, how is your family. So it was very, I cannot mention those who are, very much. Few journalists are very close to him, but I think he remembers almost all the journalists who has covered him, during the years of his play. And I remember then when he was playing his last test match in Mumbai, few of the journalists, wanted pictures with him. He said, all of you come together, and he made an arrangement at the Wankhede for a group photograph of all the journalists. There were around 100 journalists were there. So when we sat there in the on the boundary line, and there was some, some chairs arranged, and those chairs were for the journalist who covered his first test match in Pakistan. So he recalled every one of them, and he said that I am not, I cannot find out. I think Sahi was not there, and one more journalist was not there. So he said, where are other two journalists? I still remember how many journalists were there in my first test match. So someone asked him, you remember all of them? He said, yes, I recall all of them. And he named all the journalists who covered his first test match in Pakistan. Oh. So Majid bhai, आपको भी याद होगा, आपने भी शायद देखा होगा वो मैच. जी हाँ, मुझे आज भी याद है कि वो कपिल देव का शायद 100th टेस्ट मैच था, और
सचिन तेंदुलकर का डेब्यू टेस्ट मैच था, वकार यूनुस ने नेशनल स्टेडियम कराची में वो मैच था। वकार यूनुस का भी डेब्यू था, सचिन का भी डेब्यू था, और वकार यूनुस ने अपनी जो पहली टेस्ट विकेट थी सचिन को आउट करके ली। लेकिन सचिन ने मेरा ख्याल कोई 15-18 रन बनाए, लेकिन क्लास जो थी उसकी नजर आ रही थी कि सचिन किस क्लास का बैट्समैन है, क्योंकि एक बच्चा लग रहा था, कहते थे कि स्कूल बॉय है। फिर मुझे याद है उसी सीरीज का एक ओडीआई हुआ सियालकोट में, वकार यूनुस बहुत उस वक्त स्पीड से बॉल करा रहा था, तो वकार यूनुस ने, और बहुत सर्दी वाला मौसम था, बाउंसर मारा सचिन को। जब यहाँ बॉल लगी है तो मुझे आज भी याद है, वो टीवी के कैमरे ने जब जूम इन किया तो इधर ना खून की एक हल्की सी लकीर निकली है। लेकिन उसके बाद सचिन ने जो मारा है वकार यूनुस और वसीम अकरम को, तो लग रहा था कि भाई एक बहुत बड़ा बैट्समैन जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में आ रहा है। फिर मुझे ये भी ऑनर हुआ, बल्कि आज सुबह मैं सोच रहा था कि मैंने पिछले तीनों वर्ल्ड कप फाइनल जो थे वो कवर किए। अभी लॉर्ड्स में हम लोग साथ थे, मेलबर्न में हम लोग संजीव साथ थे, और बॉम्बे में वो हिस्टोरिक फाइनल जब पहले 3 बैट्समैन आउट हो गए इंडिया के, तो मुझे याद है वो बॉम्बे के प्रेस बॉक्स के पीछे ही डिनर लगा हुआ था। तो कुलदीप भाई कहने लगे, यार लग रहा है कि श्रीलंका जो है ना, अब श्रीलंका ये फाइनल जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद युवराज सिंह ने जो बैटिंग की है, फिर सचिन ने जिस तरह की बैटिंग की है, तो फिर इंडिया मेरा ख्याल 6 या 7 विकेट से वो फाइनल जीत गया। और उसके बाद फिर हमने जो वो चर्च गेट के एरिया में और वो मैरिन ड्राइव के एरिया में जो सेलिब्रेशन देखी टिल मिडनाइट, वो भी एक बड़े जबरदस्त चीज थी। हालांकि उस वक्त तक वो बॉम्बे का इंसिडेंट टेररिज्म का हो चुका था, पाकिस्तान के हवाले से सेंटिमेंट्स को अच्छे नहीं थे, लेकिन हमें, मैं बताऊं कि मुझे एटलीस्ट बॉम्बे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम तो जब भी गए इंडिया, हमारे साथ तो दोस्तों ने उसी तरह हमें लुक आफ्टर किया, और अभी भी किसी से बात होती है। साहिल साहब पिछले दिनों ट्विटर पे लिख रहे थे कि उनकी बेटी की बर्थडे थी, वो कहने लगे कि इस कोरोना की वजह से मैं और मेरी वाइफ उसको विश करने नहीं जा सकते। तो मैंने साहिल साहब को मुबारकबाद दी उनकी बेटी की बर्थडे की, तो बहुत खुश हुए। तो मतलब ये छोटी छोटी यादें हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन जो हमारी एक अपनी एक फ्रेंडशिप है आप दोस्तों के साथ, वो भी मेरा ख्याल हम उसको भूल नहीं सकते। संजीव जी, आप सुन सकते हैं हमें? Rex, Can you hear me now, gentlemen? now, Yes, you know, Mama. here in India, Loud and clear. हाँ Mama, हाँ, तो now you are audible. yeah, Majid We are bhai, not, we were not getting your voice. yeah, there were some So we technical have issues. started, you know, chatting with. Yeah. So And just a moment, I was asking a question to Rex, and then you carry on. Then you Yeah. start anchoring. Okay. Yeah. Because it was your show. Mama, But, where is I your took famous it over. cap? I am under lockdown. I'm enjoying my lockdown at home. We have seen him without cap. Now everybody, all of his followers, all of his fans, they are, now they can see his without cap. Rex, I was asking, in India, we have all the cricketers and sports person are helping out in fighting COVID-19. They are sending out messages to all their fans, and at the same time, they are also donating. Like Rohit Sharma donated around 8 million Indian rupees. Sachin donated around 5.5 million rupees. So, what about in your country? Are the cricketers and all the players are also contributing in fighting against COVID-19? Yes, absolutely. So the ones that we have known, we know that Murli donated 5 million Sri Lankan rupees, and there are others who have sort of donated, but most of them, would like to sort of, keep it private. But then what we do know is that lots of people are sort of,
players, ex-players, and current players are getting involved in, you know, I mean, the distribution of dry rations and lunch packets and meat packets, things like that. You know, I mean, obviously, the daily wage earners are being most affected. So, you know, I mean, some of these guys have sort of, I mean, taken efforts Right. to travel to far places and, you know, I mean, provide dry rations. There's Roshan Mala, Satyan Dawar, Parvez Maru, Surang Lakmal, to just name a few these guys that at it on a day-to-day basis. भट्टी साहब आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ बैक होम इन पाकिस्तान। एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर गुजर गए ड्यू टू कोविड-19। थोड़ा आप उनके बारे में बताएंगे? देखिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, ही वाज फ्रॉम पेशावर, और पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर थे, उनका भी कैंसर में डेथ हुआ कुछ दिन पहले, अख्तर सरफराज। अगर आपको याद हो कि 1997 में जब इंडियन टीम भी शारजा में टूर्नामेंट खेल रही थी, तो अख्तर सरफराज उस टीम के मेंबर थे, पाकिस्तान टीम के। तो अख्तर सरफराज के बड़े भाई थे ये, जिनकी डेथ हुई। और आज ही एक और इंसिडेंट भी हुआ कि पाकिस्तान के एक नए प्लेयर हैं आबिद अली, जिन्होंने अभी डेब्यू पे वनडे और टेस्ट मैच में 100 किए थे। आबिद अली के कजन की भी डेथ हुई है लाहौर में आज ही, इसी कोरोना वायरस से। तो संजीव जी, स्थिति क्या है ऑब्वियसली इन द कैपिटल दिल्ली में? क्या है स्थिति अभी? हाँ, दिल्ली की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, और उसकी वजह है कि कुछ लोग यहाँ पे जुटे थे। एक उनका कोई कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे, और काफ़ी रह गए वहाँ एक मस्जिद में। तो एक पर्टिकुलर उसके मानने वाले लोग थे एक सेक्ट के, तो उनको पुलिस ने कहा भी कि आप लोग यहाँ से हटें, लेकिन उन्होंने देर कर दी और काफ़ी सारे केसेज उसके बाद हो गए। तो दिल्ली में कल थोड़ा अच्छा था, बहुत कम केसेज आए, वरना हर रोज़ बहुत ज़्यादा नंबर लोग ऐड हो रहे थे। और काफ़ी मेजर्स यहाँ पर लिए गए हैं। एक्स क्रिकेटर अपने और एमपी गौतम गंभीर भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। उन्होंने किट्स मंगाई हैं, कैश डोनेट किया है और लगे हुए हैं। काफ़ी सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। होपफुली ये इट विल कम डाउन इन कमिंग डेज। अभी इंक्रीज जो था वो कल से थोड़ा घटा है। लेकिन संजीव, मुझे जो एक बड़ा सैड एपिसोड लगा इंडिया में, कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ ना, वो हजारों लोग जो ट्रेन स्टेशन पर और बस स्टॉप पर खड़े हुए थे अपने सिटीज जाने के लिए, और वो बेचारे जो पैदल चले, कुछ कह रहे हैं कि वहीं मर गए। तो वो एक बड़ा सैड इंसिडेंट था कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट 24 आवर्स का नोटिस तो देना चाहिए था, ताकि वो अपने घरों को तो पहुंच जाते। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे। तो ये थोड़ा सा एक मुझे तो अच्छी बात नहीं लगी। एक्चुअली भट्टी साहब वो थोड़े अफवाह के शिकार हो गए, और उन्हें ये लगा कि अब पता नहीं ये लॉकडाउन कितने दिनों तक, वो फैक्ट्री में और डेली वेजेस वाले वर्कर थे, तो उन्हें लगा कि ये लंबा चलेगा और पता नहीं कब तक रहेगा, हमें खाने पीने का कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। और वो लॉकडाउन का दूसरा तीसरा ही दिन था, अफवाह फैलाई गई कि वहाँ पे ट्रेन है, बसें हैं, आपको एक दिन के लिए गवर्नमेंट चला रही है, आप वहाँ पहुँचे और अपने अपने घरों को जाए। तो अभी क्या है, काफी सारे यूपी बिहार वगैरह में फसल कटने के दिन है, तो उन्हें लगा कि शहर में काम नहीं है, गांव में थोड़ा काम मिल जाएगा, फसल काटने में हम लग जाएंगे। तो इस अफवाह के चलते वो गए। बाद में उन्हें संभाला गया, बसेस से भिजवाया गया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया, लेकिन वो अफवाह की वजह से। और कल ऐसा ही एक और इंसिडेंट हुआ बॉम्बे में, जब कहा गया कि एक दिन के लिए ट्रेन चलेगी और आप वहां जाएं, बांद्रा में ट्रेन शुरू होने वाली है, तो वहां भी करीब 1500-2000 लोग पहुंच गए थे। तो कुछ इतना बड़ा हमारा देश है, कंट्री है, तो 1.3 बिलियन लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार इस तरह की बातें होती हैं। बट ओवरऑल अगर कहें तो
95%, 96% हमारे यहाँ लॉकडाउन सक्सेसफुल रहा है, लोगों ने इसको चलें, फॉलो किया है, घरों में ये रहे हैं। सबसे मेन चीज और ये है इसीलिए कि इतनी लॉकडाउन बड़ी कंट्री सक्सेसफुल के है। बावजूद हमारे पास 11,000 ही केसेस हैं अभी तक, नहीं तो ये लाखों में हो सकता था अगर ऐसा लोग नहीं मानते लॉकडाउन को। My question to both Rex and Bhatti Saab is that there are concerns coming that the Asia Cup tournament might not take place. Means because Ehsan Mani just a few days back has made a comment that he would not want to compromise IPL with Asia Cup. He would rather want Asia Cup to go ahead. So what's the development that is coming from Pakistan? And Rex, any developments as far as Asia Cup is concerned? मामा अभी तक तो देखें कोई क्लू नहीं है। वो जो आप बात कर रहे हैं, मैं भी एहसान मानी साहब के साथ उस दिन वो टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस थी उसमें था, तो वो अभी उनको कोई आइडिया नहीं है। असल में वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी है ये सब स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि एशिया कप अगर हो जाएगा तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इन एशिया लाइक हांगकांग, ओमान, तो इन लोगों को उसमें फंड्स मिल जाएंगे। लेकिन जो करंट सिनेरियो नजर आ रहा है, मुझे तो नेक्स्ट 6 मंथ भी क्रिकेट होती हुई नजर नहीं आ रही। एशिया कप तो वन ऑफ टूर्नामेंट है, जो अक्टूबर में वर्ल्ड कप T20 है वो भी मुझे तो काफी डाउटफुल नजर आ रहा है। मगर ये जो स्टैंड पॉइंट लिया है मिस्टर मानी ने कि मींस ही वुड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज आईपीएल विद एशिया कप, क्योंकि देखिए हमेशा बीसीसीआई हैज ऑलवेज बीन फ्लेक्सिबल, हैज ऑलवेज द मनी पावर एंड दे हैव बीन फ्लेक्सिंग देयर मसल्स व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग अ ग्लोबल इवेंट। तो आपको क्या लगता है कि अगर आईपीएल उस टाइम पे अगर हो और एशिया कप को कॉम्प्रोमाइज करके ये हो, क्या लगता है आपको? देखिए, कल हम लोग एक टेलीविजन शो में थे मामा, जब जिसमें पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया भी उस शो में थे, वहीद खान थे और एक और हमारे टीवी के रिपोर्टर थे। तो मैंने एक पुराना इंसिडेंट कोट किया 2000 का। शोएब अख्तर के बॉलिंग एक्शन का जब इशू आया तो उस वक्त जगमोहन डालमिया आईसीसी के प्रेसिडेंट थे। जगमोहन डालमिया ने शोएब अख्तर का केस लड़ा और मेडिकल ग्राउंड्स पर शोएब अख्तर को क्लियर करवाया। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान और इंडिया की जो पॉलिटिकल टेंशन थी इतनी ज्यादा नहीं थी। ये मेरा ख्याल जो मानी साहब कह रहे हैं वो शायद जो इस वक्त इंडिया की तरफ से जो रिस्पांस है, कल ही ये हुआ कि जो विमेंस मैचेस थे उसमें आईसीसी ने 3-3 पॉइंट्स दोनों स्प्लिट कर दिया पॉइंट्स। हाँ, तो मेरे ख्याल में वो जो इंडिया की तरफ से भी जो अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो अक्सर कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई भी नाराज है, छोटा भाई जो है वो भी कह रहा है कि हम भी नाराज है, तो घर में जो है वो टेंशन चल रही है। तो ये मेरा ख्याल जो इस वक्त दोनों देश के दरमियान जो पॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से मानी साहब ये कह रहे हैं। लेकिन आई होप के गवर्नमेंट लेवल पर अगर पॉलिटिकल टेंशन रिलीज हो जाए। आपको पता है कि इमरान खान का तो कितना बड़ा फैन क्लब है कलकत्ता में। हमारे जो देबूदा, हमारे गौतम और अपने साई साहब, ये तो इमरान खान के जो है वो पर्सनल फ्रेंड्स में से है। तो मेरा ख्याल में अगर क्रिकेटिंग टाइज रिवाइव हो जाए तो आईपीएल, एशिया कप, ये तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल में जो पॉलिटिशियंस है ना, उनको भी बड़ा दिल करना होगा। जिस तरह मैं, आप और संजीव और रेक्स इस वक्त बैठे हुए हैं, तो अगर ये सेम हमारे पॉलिटिशियंस भी थोड़े दिलों को बड़ा कर ले तो ये सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये सब रिजॉल्व हो जाएंगे। और रही बात भट्टी साहब, ऑब्वियसली जो हालात अभी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑब्वियसली ऑल द इंटरनेशनल फ्लाइट्स दे कैन नॉट गेट इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो आपको क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप इज इन सीरियस डाउट्स, क्योंकि अक्टूबर में होने का था T20 वर्ल्ड कप? देखें, इस वक्त जो सबसे ज्यादा सफर करने जा रहा है वो है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, जिनका सीजन अभी शुरू हो जाना चाहिए था। अब 28 मई तक उन्होंने अपने सीजन रोका हुआ है। तो अगर ईसीबी का डोमेस्टिक सीजन भी नहीं होता, जिसमें काउंटी चैंपियनशिप और 100 बॉल टूर्नामेंट और 3 इंटरनेशनल सीरीज हैं, 3 टेस्ट विद पाकिस्तान, 3 टेस्ट विद वेस्ट इंडीज एंड ओडीआई सीरीज विद ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के साथ T20 भी है।
तो कहते हैं कि 300 मिलियन पाउंड का लॉस होगा ईसीबी को, हो सकता है कि वो बैंकरप्ट हो जाए। तो अगर ये सिचुएशन जुलाई अगस्त तक चली गई और अगस्त तक इंग्लिश सीजन भी सफर कर गया, एशिया कप और वर्ल्ड कप T20 मुझे लग रहा है फिर मुश्किल हो जाएगा। जरा अभी टाइम काफी है, लेकिन जो यूरोप से जो खबर आ रही है वो कोई इंकरेजिंग स्टोरीज नहीं आ रही। आज भी आप अमेरिका में देखें, ठीक ठाक लोग मरे। यूरोप में इटली, पाकिस्तान टीम ने हॉलैंड और आयरलैंड भी जाना है इंग्लैंड जाने से पहले, वो टूर भी होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल में मामा इस वक्त क्रिकेट जो है ना, वो पता नहीं 2020 में क्रिकेट होगी भी या नहीं होगी। एशिया कप या वर्ल्ड कप T20 तो एक इवेंट है, लेकिन मुझे तो इस पूरे साल में क्रिकेटिंग इवेंट्स होते हुए नजर नहीं आ रहे। चलिए भट्टी साहब, ऑन दैट नोट मींस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये जो कोरोना वायरस का सिचुएशन है वो सुधर जाए और वी कैन गेट टू सी सम क्रिकेटिंग एक्शंस वेरी टाइम सून। ऑन दैट नोट वी विल लाइक टू से a big thank you to you and Shahid Hashmi sir and Sanjeev Kumar and also Rex. Until then, मेरी तरफ से भी जितने हमारे, आप चूंकि कलकत्ता में हैं और अगर संजीव लाइन पर हैं, वो दिल्ली में जितने हमारे दोस्त हैं, सबको रिगार्ड और सबको कहेंगे भाई स्टे सेफ और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, और मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Mama. Bye-bye. Thank you.